Assalamu alaikum. I am going to start my lectures of 9th class computer science subjects. 9th class of computer science consists of 6 chapters. First chapter is fundamentals of computer. Next, fundamental of operating system, office automation. Fourth chapter, data communication. Fifth chapter, computer networks, and sixth chapter, computer security and ethics. One by one I will explain all the chapters. In first chapter, it is related to history and generation of computers, how computer do work, basic functions of computer, input and output devices, hardware, uses of software and hardware, and also history of computer. And in the next chapter, fundamental of operating system, it consists of types of operating system. It consists of operating system, types of operating system. Next chapter, office automation, it's related to MS Office, like MS Word, Excel, and all the functions, like how we can do work in MS Word, how we can enter data in MS Word and Excel, what is the purpose of these two softwares. Also in this chapter, some topic is related to in-page, how we can type in Urdu in computer, and which software is used for Urdu typing. In-page software is used for Urdu typing. And next chapter is data communication. In data communication chapter, we will study about the how we can communicate data with each other, what is the media used for data communication, guided media, unguided media, Bluetooth, these type of. Next chapter is computer networks. It is related to networking of computer, how we can make a network of computer systems, how we can communicate with computer systems, what are the types of computer networks. Last chapter is related to computer security and ethics. It is related to security of computer, that how we can secure data from unauthorized persons. And now I am going to start my first lecture, which is related to first chapter, fundamentals of computer. First of all, definition of computer. Computer is an electronic machine which takes input, process it, and give result to the user. कंप्यूटर में 3 फंक्शंस होते हैं. कोई भी छोटा प्रोजेक्ट करें या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हम बनाएं, उसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं. इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. कोई भी जो हमने कंप्यूटर से काम लेना होता है, उसके लिए सबसे पहले हम उसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, देन आउटपुट हमें रिसीव होती है कंप्यूटर से. इनपुट किसके थ्रू हम देते हैं? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस. प्रोसेसिंग के लिए सिर्फ एक डिवाइस यूज़ होती है, CPU. एंड आउटपुट इज़ यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस. अब इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स इनपुट फ्रॉम यूज़र, प्रोसेस इट यूजिंग CPU एंड गिव रिजल्ट टू द यूज़र यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस. राइट, ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं. जो मैंने बोर्ड पे लिखी है वो भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं. इनपुट आप किसके थ्रू देते हैं? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू. प्रोसेसिंग किसके थ्रू होती है? यूजिंग CPU एंड आउटपुट फ्रॉम आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट आप किसके थ्रू देंगे? यूजिंग इनपुट डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस. प्रोसेसिंग CPU के थ्रू होती है, और आउटपुट यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल मॉनिटर, स्पीकर, एक्सेट्रा. इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस डिफरेंट पर्पस के लिए चेंज हो सकती हैं, लेकिन प्रोसेसिंग डिवाइस सिर्फ एक ही होती है, जो कि CPU होती है. फॉर एग्जांपल इनपुट, अगर आपने
वॉइस फॉर्म में आपको इनपुट चाहिए तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, माइक्रोफोन। और आउटपुट आपको किसके थ्रू मिलेगी, स्पीकर्स के थ्रू। ये वॉइस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं। और अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए आप कमांड्स देते हैं। कमांड्स किसके थ्रू देंगे, यूजिंग कीबोर्ड। एंड आपको आउटपुट किसके थ्रू मिलेगी, यूजिंग मॉनिटर, राइट। ये आपको कोई भी जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसके लिए हमें कमांड्स किसके थ्रू देनी पड़ती हैं, यूजिंग कीबोर्ड। वॉइस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, वॉइस इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन, आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर के थ्रू आपको आवाज़ आती है और माइक्रोफोन से आप वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कोई भी आप छोटा प्रोजेक्ट करें या कोई बड़े लेवल का प्रोजेक्ट करें तो उसके लिए आप यही प्रोसीजर यूज़ करते हैं कि आप इनपुट कंप्यूटर को देते हैं, उसके इनपुट के थ्रू जो भी आप इनपुट देंगे उस पर प्रोसेसिंग होती है यूजिंग सीपीयू, और फिर आपको आउटपुट मिलती है यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस। क्लियर होगी ये बात। कोई भी जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके लिए जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वो क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। जो इंस्ट्रक्शन हम कीबोर्ड के थ्रू लिखते हैं, जो कंप्यूटर को देते हैं, जिस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कंप्यूटर ने हमें कोई भी जो हम रिक्वायर्ड आउटपुट होती है वो हमें चाहिए होती है, वो उसके लिए हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, वो उसको कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कंप्यूटर जो हमें टास्क परफॉर्म करता है और उसके बाद हमें आउटपुट मिलती है, वो हमें रिज़ल्ट मिलता है आउटपुट। वो हमारे पास आउटपुट होगी। जो भी आपने इंस्ट्रक्शन किसी भी प्रोजेक्ट के लिए दी हैं वो आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा, आउटपुट। नेक्स्ट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। अभी मैं आपको डिफरेंट डिवाइसेस जो पहले डेवलप हो चुकी थी आजकल के कंप्यूटर से पहले, वो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। Evolution of computer means how computer evolves from first mechanical device to electronic digital computer। जो पहले डिवाइसेस थी उनमें इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज़ नहीं होता था, उसमें मैकेनिकल टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। आजकल जो कंप्यूटर्स हैं वो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स बेसिकली दैट firstly computers was used computer basically used for calculation, right। तो पहले कैलकुलेशन के लिए डिफरेंट डिवाइसेस यूज होती थी, लाइक अबेकस, जिसमें अबेकस आप देख सकते हैं, इसमें वुडन फ्रेम है और इसमें ये रॉड्स आपको नज़र आ रहे हैं। रॉड्स में ये डिफरेंट बीड्स हैं, ठीक है। एक मिनट मैं आपको बुक से भी दिखा दूँ। ये अबेकस आप देख सकते हैं, ये वुडन फ्रेम कंसिस्ट ऑफ रॉड्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ बीड्स। ये आपको बीड्स नज़र आ रहे हैं, नीचे दो पोर्शंस में है, नीचे वाले में 5 हैं और ऊपर 3 है, राइट। किसी भी डिवाइस के लिए आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने ये चीज़ याद रखनी है वो चीज़ डेवलप कब की गई, किस पर्पस के लिए की गई और उसमें क्या चीज़ यूज़ होती है। जैसे इसमें वुडन फ्रेम कंसिस्ट ऑफ रॉड्स एंड बीड्स, और उसके बाद आपने ये याद रखना है कि ये पॉइंट बताना है कि वो किस पर्पस के लिए यूज़ होती थी। कैलकुलेशन उसमें कौन कौन सी होती थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में से कौन सी उसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म की जा सकती थी। लास्ट पॉइंट आपने ये बताना होता है कि ये वो जो भी डिवाइस है, अबेकस, मार्क 1, वटेवर, वो डिवाइस कहाँ पे यूज़ होती है, आजकल कहाँ यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है, या कब तक वो यूज़ होती थी। क्लियर। अब अबेकस के मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं, वो आप भी देख लें। अबेकस अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है। कैलकुलेटिंग डिवाइस मींस कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती थी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए ये डिवाइस यूज़ होती थी। इट वाज प्रोबेबली इन्वेंटेड इन चाइना। चाइना में ये डेवलप की गई एंड इट कंसिस्ट ऑफ वुडन फ्रेम हैविंग पैरेलल रॉड्स। ये वुडन फ्रेम में रफ सी पिक्चर बना ली है। वुडन फ्रेम कंसिस्ट ऑफ रॉड्स, ये वुडन फ्रेम है, लकड़ी की ये फ्रेम होती है, इसमें ये रॉड्स हैं, ठीक है, जो तारें होती हैं, तार टाइप होती है, और इसमें ये वाले बीड्स हैं,
2 पोर्शंस में बीट्स हैं, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, राइट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चारों पर्पज़ के लिए ये डिवाइस यूज़ होती है। क्लियर हो गया। सो इट कंसिस्ट ऑफ वुडन फ्रेम having rods which consist of on beads. Beads can easily move in the rod, right? While performing calculation, beads can easily move up and down. क्लियर। ये आपको अप नज़र आ रहे हैं, ये डाउन नज़र आ रहे हैं, इसी तरह से ये यूज़ हो सकते हैं। बीट्स इजीली मूव होते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इट हैज़ बीन यूज्ड इन चाइना एंड सम अदर एशियन कंट्रीज टिल द एंड ऑफ 20th century। क्लियर। आपने ये पॉइंट्स मस्ट याद रखने हैं कि किसी भी डिवाइस के लिए, नेक्स्ट आगे भी जो डिवाइसेस रहेंगी उसके लिए आपने सबसे पहले ये पॉइंट याद रखना है कि वो डिवाइस कब डेवलप की गई, किसने डेवलप की, ठीक है, किसके थ्रू इन्वेंट की गई, किसने इजाद की वो डिवाइस। उसके बाद इस किससे कौन सी जो उसमें जैसे ये वुडन फ्रेम कंसिस्ट ऑफ वुडन फ्रेम एंड रॉड्स, बीड्स, इससे मिलकर बनी है। कोई भी डिवाइस किससे मिलकर बनी है, किसके थ्रू, और उसके बाद आपने ये बताना है कि ये डिवाइस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है और कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। ये आपने पॉइंट्स मस्ट बताने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।